आई थिंक कि हम अपनी वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आई थिंक कि पाकिस्तान लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने आज ये वर्कशॉप प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। जब तक कि मैं वर्कशॉप की स्लाइड्स खोलता हूँ, तब तक हम 2-3 मिनट वेट भी कर लेते हैं ताकि अगर कोई और पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको हम जॉइन करने का वेट कर लें और फिर उसके बाद हम अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। We'll just wait for जी बेहतर। 2-3 minutes. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Can is audible? जी, अब ऑडिबल है, लेकिन आपने अगर पहले कुछ कहा है तो वो उसकी आवाज़ मुझे नहीं आई। नहीं नहीं। मैं इंट्रो स्टार्ट कर देता हूँ होप, क्योंकि पार्टिसिपेंट मोस्टली ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। प्लीज़ गो अहेड। Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. My name is Moizer Rahman and it is my privilege to welcome you to this first session of our 3 days intensive workshop, Research and Drafting in Practice, hosted by the Pakistan Law Student Association. A warm welcome to all the dedicated law students joining us this evening from across the country. A special and sincere thank you to our guest speaker, Barrister Ali Haider Najfi, for joining us tonight to share his expertise. The Pakistan Law Student Association is a national level student led body dedicated to the growth of law students across the country through academic enrichment, professional development, and practical exposure. This workshop is primarily an initiative of the PLSA research team designed to further our mission of creating collaborative platform for aspiring legal minds. Barrister Ali Haider Najfi is a legal practitioner and a teacher with over 7 years of experience in the field of law. He holds a BA LLB from Punjab University, a graduate diploma in law from University of Law London, and a LLM in bar vocational studies with specialism in advocacy from City St George University of London. He has worked in both Pakistan and the United Kingdom, handling a wide range of legal matters from housing dispute to complex civil cases worth over $1 million. In the UK, he worked with MTG Solicitor, a housing law firm where he helped more than 80 families secure safe homes and understand their rights. He has also pleaded cases before various London courts, assisting senior lawyers and gaining hand-on experience in more than 20 real cases. In Pakistan, he has worked in Mandiwala and Zafar Advocates and ABS and Co, where he represented over 100 clients in major civil and white-collar cases. Now he runs his own litigation law firm, specializing in civil, criminal, and taxation law, where he continues to fight for his clients' rights and deliver fair outcome. Alongside his practice, he has been teaching international law, world legal system, and property law at Punjab University Law College and Government College University Lahore, guiding students and young professionals. His expertise make him the perfect guide for tonight's crucial session on legal research, statutory provisions, case laws, and other legal authorities. Without any further delay, let's begin. The virtual floor is all yours, Barrister Najfi. सर काइंडली कंफर्म कर दें कि आप किस तरह क्वेश्चन लेना पसंद करेंगे, वेदर
through raising hand on Google Meet or through chat box? आई थिंक कि हम बीच में हाथ रेज कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक गूगल मीट पे ऑप्शन आती है एंड देन हम साथ साथ जी क्वेश्चंस रेज करते जाते हैं. जी बेहतर है. एक्सेलेंट. सो आई थिंक सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि सबको दिखना शुरू हो जाए. Go. ओके, प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आप सबको स्क्रीन दिख रही है. जी मुझे अभी तक तो नहीं शो हो रहा. अब तक नहीं दिख रही. ओके, कैसे हो रही है? Yes, sir. हमारी It's visible. चलिए. एक्सेलेंट. ठीक है. ओके, सो इससे पहले कि हम इस लीगल रिसर्च की वर्कशॉप को स्टार्ट करें और इसका एजेंडा समझें, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी अहमियत क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल रिसर्च इटसेल्फ एक ऐसा स्किल है जो कि ट्रांसफरेबल स्किल है. सो ख्वाह आप आगे लीगल प्रैक्टिस के अंदर आना चाहते हैं, लीगल प्रैक्टिस के अंदर आ चुके हैं, या इवन लीगल प्रैक्टिस के अंदर आपने नहीं भी आना बट आप अभी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी लीगल रिसर्च के स्किल्स वाइटल रोल अदा करते हैं. और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज इवन अगर आप लीगल फील्ड में ना भी आए तो ये वो स्किल्स हैं जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं. तो आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएं, वहाँ पे ये स्किल्स आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे और यही आपको आपके दूसरे कॉलीग से, आपके साथ वाले लोगों से आगे करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये बात होगी. सेकेंडली, the skills, the steps that I'm going to share with you during this presentation, during this workshop, these skills I've learned over a period of 7 years, right? And the aim of this workshop is to squeeze the 7 years of experience within an hour's workshop. So I would recommend and I would encourage कि आप लोग साथ में notes लें, बिकॉज अगर आप जहन के ऊपर छोड़ेंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी स्किप हो जाएगी. बिकॉज मैंने भी एग्जैक्टली यही गलती की थी. सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, राइट. सो विदाउट फर्दर ड्यू, आई थिंक के एक बहुत ही लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन पहले से आप लोगों को मिल चुका है, बट वेरी ब्रीफली, मेरा नाम बैरिस्टर हैदर नजफी है and I'm a practicing lawyer within Pakistan, and I also work in the UK with a solicitor's law firm. And I've been working in Pakistan for about 7 years, in UK for about 2 years now. पाकिस्तान में प्रैक्टिस के साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा भी रहा हूँ और सब्जेक्ट्स जो हैं वो आई थिंक मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर पहले से बता दिए गए हैं. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को. आज का जो एजेंडा है हमारा, बेसिकली हमने 4 चीज़ें इसके अंदर कोशिश करनी है कि कवर करें. सबको स्लाइड्स बाय द वे दिख रही हैं ना, राइट? नो सर. स्लाइड्स अभी नहीं दिख रही? Sir, slides are visible. ओके, एक्सीलेंट. ओके, 1 सेकेंड, अभी मैं ओपन कर देता हूँ फिर. ओके, अब बताइए, अब दिख रही है स्लाइड? यस सर. अब जा चुकी है. एक्सीलेंट. ठीक है. सो आज का जो एजेंडा है हमारा, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 4 स्किल्स टोटल एक्वायर करें. सबसे पहला तो ये Excuse me, sir. Sir, sorry to disturb. आपकी presentation अब disappear हो गई है. क्या हो रही है? Disappear हो गया. I guess you have opened in the PPT version और आपने फिर वो नहीं show हो रही है अब आपकी slides.
अच्छा स्लाइड्स नहीं शो हुई। Yeah. ओके 1 सेकंड, आई थिंक इसको मैं फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि इजी रहे। यस श्योर। सर आप ऐसा करें, आप हमें सेंड कर दें, सुलेत इसको साथ साथ कंटिन्यू करता है, वो शो कर लेते हैं, इस तरह इजी रहेगा। सर ग्रुप में चलिए। शेयर कर दें आप व्हाट्सएप ग्रुप में। आई थिंक उसका साइज बड़ा है, इस वजह से प्रॉब्ली व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, बट उसमें टाइम लगेगा। अच्छा चलें, अब मैं पीडीएफ में दिखाता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा अब आप दिख रहा है कि नहीं। नो सर, शो नहीं हो रही सर। सर शो हो रही है अब, सर अब हो रही है शो। अब शो हो रही है। यस तो कंटिन्यू करना। चलिए यस। ठीक है। ओके, सो हमारे एजेंडा में 4 स्किल्स हैं जो आज हम कोशिश करेंगे कवर करें। सबसे पहला ये कि जब आपके सामने एक प्रॉब्लम दी जाए तो उसके अंदर से हमने लीगल इश्यूज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड, जब आप लीगल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लें उसके बाद आपने कानून कैसे तलाश करना है, सो वेयर डू यू कलेक्ट द लॉ। फिर उसके बाद थर्ड स्किल जो हम कोशिश करेंगे वो ये कि जब आपने कानून पढ़ लिया तो उसके बाद आप आगे रिसर्च कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आप नैरो डाउन कैसे करेंगे अपनी तमाम रिसर्च को, और फाइनली जो रिसर्च के बाद आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेंगे उनको एफिशिएंटली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई नो कि हो सकता है आप में से कुछ यंग प्रोफेशनल्स हों जो कि पहले से लीगल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हों जो अभी अपनी लॉ कॉलेज के अंदर हों, एंड आई नो कि लॉ कॉलेजेस के अंदर अब तो इतना रुझान मूट कोर्ट्स का आ गया है कि आप लोगों ने लीगल रिसर्च करनी ही करनी होती है। यंग प्रोफेशनल्स की तो अंडरस्टूड है, बट लीगल लॉ स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हम कवर करेंगे ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आप आइडेंटिफाई कर सकें, आप समझ सकें, मोर एफिशिएंटली आप रिसर्च कर सकें। बिकॉज़ आई नो कि जो शुरू में मुझे इश्यू आया किया करता था रिसर्च में वो ये कि टाइम कम होता था और रिसर्च ज़्यादा होती थी, पहला। और दूसरा ये कि इन्फॉर्मेशन का भरमार होता था, उस इन्फॉर्मेशन के भरमार में जो ओरिजिनली मैं टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा होता था वो फिर कहीं और रह जाता था। और आई एम श्योर कि आप लोग इस इशू के साथ रिलेट कर पाएंगे। सो दिस वर्कशॉप विल बी अ सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। So before we begin, a quick, small, um, a quick small effort from you guys. I want you guys to comment whatever you're feeling right now, whatever you're expecting right now in the form of emojis, so that हमें पता चल जाए कि इस वक्त सेशन की वाइब क्या चल रही है। तो गो अहेड, आप लोगों ने चैट बॉक्स के अंदर कोई इमोजीज देने हैं या आपने आई डोंट नो थम्स अप देना है तो वो स्क्रीन के ऊपर वैसे भी आ जाता है। तो गो अहेड। ओके, आई डोंट थिंक कि अभी कोई रिएक्शंस आए हैं। क्या टेक्स्ट के अंदर आप लोग मैसेजेस भेज सकते हैं? आर यू एबल टू? इससे हम चेक भी कर लेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस हम मुझ तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। स्मॉल टीम एफर्ट जस्ट टू शो कि आप प्रेजेंट हैं, मैं प्रेजेंट हूँ, और हम क्विकली एक दूसरे के टाइम को जो है वो वैल्यू करें अच्छे तरीके से। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। ओके, सो सबसे पहली चीज़ के ऊपर आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आपके सामने एक इशू आए
तो आपने उसके अंदर से लीगल प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये वर्कशॉप्स जो भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, उनको मैं रियल लाइफ़ सिनेरियो बेस्ड करूँ। सो आपके सामने मैं एक छोटा-सा क्लिप 1 मिनट का चलाऊँगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको नोट डाउन कर लें। आपके पास पेन एंड पेपर अगर अवेलेबल हैं या फ़ोन में आपने नोट डाउन करना है, कर लें, ताकि फिर उसके बाद आप एक सिनेरियो जो है अपने तौर पे लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर लें और फिर उसको हम अपने स्किल्स के थ्रू मज़ीद निखारेंगे कि कैसे फैक्ट से आप लीगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो आपके सामने मैं एक वीडियो चलाने लगा हूँ। ओके, देयर वी गो। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात क्या है, यार मोहम्मद से जानते हैं। अपडेट कीजिए यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता रात साद उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार होते हुए इमिग्रेशन हुकाम ने पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिया है। इस वक्त जो डकी भाई हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलविस करने का इल्जाम है डकी भाई पे, जबकि इनके मोबाइल से भी मशकूक व्हाट्सएप नंबर भी हासिल कर लिए गए हैं। जो तफ्तीशी टीम है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान और हेड कांस्टेबल ताहिर शामिल हैं। तमाम जो समाजी रास्तों की वेबसाइट के जरिए अवाम को गुमराह करता रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ओके, क्या समझे? आप लोगों ने होपफुली कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफ़ाई कर लिए होंगे, फैक्ट सर्कमस्टेंसेस आप लोगों ने लिख लिए होंगे। एनी टेकर्स कि अभी इस स्टेज के ऊपर आप लोगों ने क्या लीगल क्वेश्चंस पाए? यस, नजीब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसमें हमने नोट किया कि साइबर क्राइम एजेंसी ने इसको डकी भाई को जो है वो एक पकड़ा है, नोटिस सेंड किया है, जिस पे इन्होंने साइबर क्राइम की कोई एक्टिविटी की है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए इसमें आपके ख़्याल में क्या लीगल प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकते हैं? ओपन टू ऑल, ओपन टू द फ्लोर। क्या इसमें लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये यूट्यूबर जो हैं वो नेक्स्ट वीक मीटिंग के लिए इनकी फैमिली आ रही है। अब आपने अपनी रिसर्च ऑफ़िस में कंडक्ट करनी है। आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि मीटिंग के अंदर क्या बात होगी और क्या लीगल इश्यूज़ जो हैं उनसे आपको अपने क्लाइंट को आगाह करना है। तो क्वेश्चन फॉर ऑल, आप लोग अपने हैंड रेज़ करके और बता सकते हैं कि क्या पॉसिबली लीगल प्रॉब्लम्स इस फैक्ट्स इन सर्कमस्टेंसेस में अराइज़ हो रहे हैं? जी, नजीब। सर, इसमें सबसे पहले तो हम इनकी फैमिली से पूछेंगे कि इन्होंने जो एक्टिविटी की है वो क्या, किस किस्म की एक्टिविटी की है, उनके पास क्या एविडेंस है जो मतलब ट्रांजैक्शन की है। जैसे डकी भाई की जनरल एक्टिविटी शो ऑफ करना, वो बंगले दिखाना, ये चीज़ें सारी एक तो सोशल मीडिया पे सबको पता है, मगर जो इनकी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री पूछेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान में वो लीगलाइज है या नहीं। सही, वो चीज़ हम नोट आउट करेंगे कि अगर वो एक लीगल चैनल के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है पाकिस्तान में, जैसे पेका एक्ट है या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, उसके ज़ुमरे में अगर नहीं आ रहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे तो क्लाइंट को बताएंगे। ठीक है। थैंक यू नजीब। मीर, अब आपने आई थिंक हाथ खड़ा किया था, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, मेरे ख्याल में अगर हमें डकी भाई के केस का पहले ही हमने जो एफआईआर लॉन्च की, अगर वो हमने पढ़ी हुई होगी, तो हम फैमिली को ये चीज़ बताएंगे कि हमारा जो अक्यूज है उस पर फलां फलां एलिगेशंस हैं और फलां फलां एलिगेशंस की इतनी इतनी सज़ा है और सज़ा के लिए हम इस तरह से ज़मानत में जा सकते हैं
और उसके लिए इतना टाइम दरकार होगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये अगर आपने कोई ट्रांज़ैक्शंस किए हैं या इस तरह से कोई चीज़ जो एलिगेशंस हैं एफआईआर में, उन एलिगेशंस से रिलेटेड जितने भी हमारे फेवर में हमारे पास आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मुहैया कर दें। ठीक है, थैंक यू मीर। अब्सार, आप बताइए। यस सर, हम पहले तो अदर जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं उनसे एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फर्दर और किसी को इस केस के बारे में कुछ पता है या उनके साथ ये इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है, थैंक यू मिस अब्सार। मिस इंशाल, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एम आई ऑडिबल? यस। सर, जो कभी भी जैसे कोई केस आता है या कोई भी, और अगर हमें उससे चार्जेस ख़त्म करने होते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट आएगा, तो सबसे पहले हमें उसकी इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी कि ये इंटेंशनली था या नहीं था। दूसरा, उसके अगेंस्ट हम लोगों को मतलब ओवरऑल एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे कि पाकिस्तान में पहले इस तरह के जो केसेस हैं वो क्या कहते हैं हुए हैं, जिस तरह और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं और भी बहुत सारी टीम्स हैं जो इंटरनेशनली बैटिंग को सपोर्ट कर रही हैं। एंड आफ्टर दैट हमें क्या कहते हैं जो जी, आई थिंक आपकी आवाज़ बीच में चली गई मिस इंशाल। वाज दिस ऑल या आपने कुछ और बीच में बताना है? Okay, I think Miss Sana ने भी साथ में comment किया है कि first thing which I identify is the area of legal problem. Either it's a civil matter, criminal, from the facts and circumstances, registered FIR based on the domain of the matter will easily identify the parties involved. Right. Okay. एक और suggestion Miss Sana की तरफ से आ गई। जी गफ़ार, आप बताइए। जी गफ़ार, we're waiting for you. सर, हम सबसे पहले जब हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हम जब सबसे पहले जो है उसकी फ़ाइल पढ़ेंगे कि फ़ाइल में सबसे पहले हम उसकी फ़ाइल पढ़ेंगे कि उसमें जो चार्जेस लगे हैं, सबसे पहले हम उस चार्जेस को रीड करेंगे। क्या वो चार्जेस जो हैं हमारे कॉग्निजेबल ऑफ वो बेलेबल ऑफेंसेस है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, और फिर एफआईए ने जो फर्दर इंक्वायरी की है, क्या एयरपोर्ट से जो डक्की भाई को पकड़ा है, क्या डक्की भाई का नाम जो है वो ईसीएल में है या नहीं है जो इन्होंने उस टाइम पकड़ा, और ये फर्दर इंक्वायरी के टाइम उनको अरेस्ट किया है या आफ्टर एफआईआर उनको लॉन्चिंग एफआईआर इनको अरेस्ट किया है। ये सारे लीगल पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे इसमें। ओके, एक्सीलेंट, ठीक है, थैंक यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त बताया। सबसे पहले हमने सबसे बेसिक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, वो ये कि कौन पार्टीज हैं इस केस के अंदर, राइट? कोई चाहे सिविल नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का हो, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं फॉर रिसर्चिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई हु द पार्टीज आर, राइट? एंड व्हेन आई से हु द पार्टीज आर, you're supposed to identify the relationship in between the parties, right? So for example, अब हम इन डकी भाई की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे केस है स्टेट की तरफ से बनाया हुआ, स्टेट का एक अथॉरिटी है NCCIA, उन्होंने केस लॉन्च किया अगेंस्ट डकी भाई, राइट? अब आप इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा डकी भाई जो हैं उनका रिलेशनशिप NCCI के साथ इस वजह से है बिकॉज डकी भाई पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं फर्स्टली। सेकेंडली, ये पाकिस्तान के अंदर रह के और इन्होंने ये एक्ट कमिट किया है, राइट? सो इस वजह से इनके ऊपर स्टेट की जुरिस्डिक्शन लागू होती है, फेयर इनफ। अच्छा, अब चूंकि स्टेट की जुरिस्डिक्शन लाए होती है तो स्टेट की एक अथॉरिटी है NCCI। स्टेट के बनाए हुए कानून की जहाँ पे वॉयलेशन होगी वहाँ पे फिर जो है वो स्टेट अस को देख पार्टी बन जाती है। सो यहाँ पे दो हमने पार्टीज आइडेंटिफाई कर ली। ये आप लोगों को मालूम होगा क्रिमिनल केसेस के अंदर एक पार्टी हमेशा स्टेट होती है और डिफेंडेंट होता है, राइट? सो यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक आपकी आ गई डिफेंडेंट डकी भाई और एक पार्टी आ गई आपकी स्टेट, और NCCI इज एक्टिंग थ्रू द स्टेट, ठीक है? ओके, फर्स्ट ये बात होगी। सेकंड बात आपने ये आइडेंटिफाई करनी है कि
क्या इन 2 अफराद के अलावा भी कोई कनेक्टेड पर्सन्स हैं इस केस के अंदर कि नहीं, राइट? तो आप देखेंगे अच्छा अगर मैं मिसाल के तौर पे डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो क्या कोई ऐसे कनेक्टेड पर्सन्स हैं जिन्होंने पॉसिबली अबेट किया हो, असिस्ट किया हो, इंस्टिगेट किया हो डिफेंडेंट को? क्या उनको पार्टी बनाया जा सकता है? क्या कोई विटनेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, राइट? क्योंकि जब केसेस कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एविडेंस मैटर करता है। क्या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं है? क्या कोई आई विटनेसेस हैं कि नहीं है? कोई रियल पर्सन्स एविडेंस के तौर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और थर्डली ये कि क्या इसके अंदर कोई प्राइवेट एक्टर्स भी हैं कि नहीं? अब प्राइवेट एक्टर्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जी यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि जो क्लिप था उसमें उन्होंने बताया कि डकी भाई के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो आम लोगों को गुमराह कर रहे थे, राइट? आम लोगों से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे एक प्राइवेट एक्टर, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पब्लिक का बंदा जिससे पैसे निकाले गए हैं डकी भाई के थ्रू, तो क्या वो पॉसिबली प्राइवेट एक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आपने लीगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में सोचना है, तो सबसे पहले आपने पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन पार्टीज हैं, ठीक है? आपने साथ में नोट्स बनाते जाना है यार, अच्छा पॉसिबली डकी भाई के अगेंस्ट एनसीसीआईए पार्टी है, एनसीसीआईए के अलावा और कौन पार्टी हो सकते हैं? क्या इसके अंदर पॉसिबली पेमरा पार्टी हो सकती है? क्या इसके अंदर पीटीए पार्टी हो सकती है कि जी उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा कि जी यूट्यूब के ऊपर क्या चल रहा है, राइट? गवर्नमेंट की एक और अथॉरिटी आ गई, क्या वो पार्टी बन सकती है? क्या कोई विटनेसेस हैं इस एक्ट इटसेल्फ के जो कि पार्टी बन सकते हैं? क्या कोई प्राइवेट बंदे हैं जो पार्टी बन सकते हैं, राइट? सो ये आपने तमाम पॉसिबिलिटीज को जॉट डाउन करते जाना है, राइट? जब आप बैठते हैं ना, आपके सामने अब ये फैक्ट्स आ गए 1 मिनट के आपके सामने, प्रेस क्लिपिंग चल पड़ी, राइट? आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि जी कौन पार्टीज हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका होगा वो होगा कि आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली एक्ट क्या कमिट हुआ है, राइट? सो हुआ क्या है बेसिकली? आपने कहा कि जी हमने एफआईआर पढ़ी या हमने प्रेस क्लिपिंग से हमें पता चला कि जी डकी भाई जो हैं वो अपने चैनल के थ्रू कुछ बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन किया करते थे, राइट? और उस के स्पॉन्सर उनको पैसे भी आया किया करते थे, तो उनके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस का भी एविडेंस अपैरेंटली एफआईए ने एनसीसीआई ने अपने एफआईआर के अंदर लिखा है कि एविडेंस मिला है, और इंक्वायरी उन्होंने कंडक्ट करके और फिर ये अपना इंक्वायरी उनकी कंक्लूड हुई, राइट? सो आपको समझ आ गया अच्छा एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है? और साथ में आप जब एफआईआर पढ़ेंगे या आप अगर सिविल मैटर का देख रहे हैं तो उसके अंदर आप केस पढ़ेंगे या आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इसके ऊपर कानून कौन सा लगता है, तो फिर आप उस स्पेसिफिक प्रोविजन की तरफ जाएंगे, राइट? कि अच्छा जो हुआ है वो किस कानून के मुताबिक हुआ है, किस कानून की वॉयलेशन है, राइट? सेकंड चीज आपने ये जॉट डाउन कर लेनी है कि अच्छा कानून कौन सा जो है वो वॉयलेट हुआ है, कौन से कानून के मुताबिक ये कार्रवाई हो रही है, ठीक है? अच्छा जब आप व्हाट सोच रहे होते हैं कि व्हाट इज द इशू, तो साथ में आप ये भी देखते हैं कि व्हाट डज द क्लाइंट वांट, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट डज द क्लाइंट वांट। अब मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट जो है वो आपके पास आ रहा है कि जी मुझे तो बेल पिटिशन फाइल करनी है, ठीक है? लेकिन आप रिसर्च कर रहे हैं ट्रायल से मुतालिक, तो फिर आपकी एक डिस्कनेक्ट आ जाएगा आपकी रिसर्च के अंदर और द एक्चुअल क्वेरी। तो आपने आइडेंटिफाई ये भी करना है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, क्या आया वो इस टाइम पे बेल पिटिशन चाह रहा है, क्या सिविल मैटर में इस टाइम पे वो इंजंक्शन सीक करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा, राइट? तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्लाइंट चाहता क्या है। ये मैं बिल्कुल बेसिक करके बिल्कुल बेबी स्टेप्स के अंदर आपको लेके चलूँगा ताकि ज़हन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और सबके लिए आसानी हो के साथ-साथ लर्न कर सकें। ठीक है। थर्ड सवाल, और आप नोट करेंगे कि ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो नॉर्मली एक जर्नलिस्ट लिया करता है। आपने एक जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम करना है, राइट? आप लोगों को हो सकता है याद हो कि जब हम लोग बचपन में एसेज़ लिखा किया करते थे, उर्दू के, इंग्लिश के, आई एम श्योर कि आप लोगों ने मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल्स में लिखे होंगे बिल्कुल। तो उसमें आपको याद होगा कि एक बाकायदा पैटर्न हम फ़ॉलो किया करते थे। वो होता था 5 डब्ल्यूज़ एंड 1 एच का। आप देखेंगे यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वही पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है।
पहले हमने कहा कि हु आर द पार्टीज, व्हाट इज द इशू, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन, राइट, कि ये इशू कब आइडेंटिफाई हुआ, राइट, कब हुआ है इसके ऊपर काम शुरू। अब डकी भाई के केस में आप देखेंगे, अच्छा इंक्वायरी कब इनिशिएट की गई है, राइट। एनसीसीआई का जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ कि जो एफआईआर के केसेस होते हैं, एनसीसीआई के साइबर क्राइम के केसेस होते हैं, उसमें पहले एक कंप्लेंट लॉन्च की जाती है एक कंप्लेनेंट की तरफ से, उसके बाद एफआईए एनसीसीआई अपनी इनिशियल इंक्वायरी कंडक्ट करता है। जब एक दफ़ा इनिशियल इंक्वायरी कंडक्ट हो जाती है ना, उसके बाद एफआईआर करती है। सो अगर इनिशियल इंक्वायरी के अंदर पाया जाए कि यार कोई एविडेंस है इस शख्स के अगेंस्ट, तो फिर एफआईआर जो है वो रजिस्टर होती है, वरना एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। ये दिस इज अनलाइक अ नॉर्मल क्रिमिनल केस जहाँ पे आप एप्लीकेशन देते हैं और फिर फौरी तौर पे जो है वो अगर क्राइम ऐसा हो और आपको यकीन हो एसएचओ को कि जी ये क्राइम कमिट हुआ है, तो फिर वो एफआईआर काट देता है, ठीक है। दिस इज, और फिर उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट करता है। दिस इज अ डिफरेंट प्रोसीजर इन एनसीसीआई केस, साइबर क्राइम केस या एफआईए के केस, के वहाँ पे इनिशियल इंक्वायरी कंडक्ट करके फिर एफआईआर काटी जाती है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई कब ये केस इनिशिएट किया गया। बेसिकली सिविल मैटर है तो कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है, वो बिना जिसकी ऊपर आप क्लेम लेके आएंगे वो इटसेल्फ कब अराइज हुआ है। क्रिमिनल केस में जो एक्शन इटसेल्फ है, जो कि ऑफेंस है, वो किस टाइम पे कमिट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सबसे पहला कि इसके अंदर आपका लिमिटेशन लगती है। सो लिमिटेशन वो कानून है जिसके तहत आप किसी शख्स के खिलाफ, आपके पास एक दौरानिया है, वक्त है, एक एक्शन कमिट हुआ है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर आपने अपना क्लेम लेना है, अपना क्लेम मांगना है, या आपने अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसको रिपोर्ट करना है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। अगर ये टाइम लैप्स कर जाए, ये टाइम गुजर जाए, तो फिर आप क्लेम नहीं मांग सकते, या अगर क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है तो वो क्वॉश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, राइट। सो आपकी टाइमलाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि भाई हो सकता है डकी भाई जो हैं, इन्होंने अपना एक्शंस, ऑफेंस हो सकता है कि पिछले 6 महीने से ये ऑफेंस कमिट कर रहे हो। फर्स्ट इनकी वीडियो सरफेस हुई हो सम 8 मंथ्स अगो, राइट। बट इंक्वायरी, सवाल उठेगा फिर कंप्लेंट कब आई है, कि जब कंप्लेंट आई है, रिपोर्ट हुआ है मैटर, तो वो टाइम पीरियड आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ऑफेंस इटसेल्फ एंड द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, इज देयर अ डिले इन बिटवीन देम, राइट। और यहाँ पे डिलेस खासतौर पर क्रिमिनल केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इनकी बेस के ऊपर कन्विक्शन, एक्विटल आए दिन हाई कोर्ट्स के अंदर होती है। नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर जो फैसला हुआ, ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए दिन इन बेसिस के ऊपर, डिलेस की बेसिस के ऊपर एक्विटल्स होते हैं, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि एक्ट इटसेल्फ, अगर ऑफेंस कमिट हुआ ऑफेंस, अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन है सिविल मैटर में, तो एक्ट इटसेल्फ कब हुआ है और उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कब हुई है या क्लेम किस वक्त मांगा गया। अगर डिलेज होंगे, सो दैट गोज इन योर फेवर, आपके खिलाफ अगर केस है, दैट गोज इन योर फेवर। और लिमिटेशन अगर गुजर गई है तो फिर तो आपका केस शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, राइट। सो आमतौर पे ये वो स्टेज होती है जहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ, और जो मैं खुद करता आया हूँ, वो ये कि मैं एक फैक्ट शीट बनाना शुरू कर देता हूँ, राइट। एक फैक्ट शीट जिसके अंदर आप 3 कॉलम्स नॉर्मली या 2 कॉलम्स बनाते हैं। एक साइड पे आप क्रोनोलॉजिकली डेट लिखते हैं और डेट के आगे आप इवेंट लिख दिया करते हैं, राइट। आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि यार सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या चल रहे हैं। भाई ऑफेंस, वो वीडियो सरफेस किस टाइम पे हुई है, कौन सी तारीख को वो वीडियो सरफेस हुई है जिसके अगेंस्ट पे कंप्लेंट की गई है, कौन सी तारीख को कंप्लेंट की गई है, फिर इंक्वायरी कब शुरू हुई है, इंक्वायरी कंडक्ट कब हुई है, इंक्वायरी खत्म कब हुई है, एफआईआर कब कटी है, और फिर अरेस्ट कब हुआ है, और फिर अरेस्ट के बाद कितने दिन से ये शख्स फिजिकल रिमांड में है, राइट। सो एट दिस स्टेज जो आपको मैंने प्रेस क्लिपिंग दिखाई है, इस स्टेज तक ये तमाम सवाल हैं विद रिगार्ड्स टू द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, जो आपने खुद ही आपके जहन में ये मेरे बताने से पहले ही आ गए होंगे, ये आपने आइडेंटिफाई कर लेना, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन के व्हेन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ इशू, द fourth thing that you need to think about, which is why, right? ये ऑफेंस क्यों कमिट किया गया है, ठीक है। ये सिर्फ आपने एक पार्टी की तरफ से नहीं सोचना कि आपके पास अगर डिफेंडेंट केस लेके आ रहे हैं तो सिर्फ आपने उसकी तरफ से सोचना है, बल्कि आपने अक्लमंद वकील, अक्लमंद लॉयर्स, अक्लमंद
लॉ स्टूडेंट्स और इवन अक्लमंद रिसर्चर्स दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपने वाई के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि पार्टीज का मोटिव क्या था। अगर मिसाल के तौर पे डकी भाई ने प्रमोशन की है इन एप्स की, तो वो क्यों की है, ठीक है। और अगर एनसीसीआई ने एक्शन लिया है, तो वो क्यों लिया है। दिस इज द बेसिस ऑफ द एक्शंस देमसेल्व्स, राइट। यहाँ पे हो सकता है कि आपके क्लाइंट जो हैं उनका पर्सपेक्टिव ये हो कि भाई मैंने तो बेटिंग एप्स कोई प्रमोशन इस वजह से की थी बिकॉज मैंने पाकिस्तान पीनल कोड देखा था और कहीं पे भी वहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ था कि बेटिंग एप्स को मैं प्रमोट नहीं कर सकता। सो कानून उसके ऊपर खामोश था, तो मैंने उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब आप अगर मुझे सज़ा देना चाहते हैं, तो पहले आप कानून को जाके अमेंड करें। ये हो सकता है कि आपके क्लाइंट का पर्सपेक्टिव हो, या आपके जहन के अंदर ये बात आ जाए कि भाई मोटिव ये हो सकता है कि भाई कानून इटसेल्फ मौजूद था जैसा तो ऑफेंस कमिट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। सो यहां से आप मोटिव आइडेंटिफाई करते हैं, भाई पार्टीज ने किस जहनियत के साथ, किस स्कोप ऑफ माइंड के साथ, किस माइंडसेट के साथ ये एक्ट कमिट किया है। इसी के बरक्स आप अगर एनसीसीआई का मोटिव देखें, एनसीसीआई कहेगी भाई कि ये हम तो ये देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बेटिंग इलीगल है और बेटिंग को प्रमोट करने वाला भी एक्शन इटसेल्फ एक ऑफेंस है, राइट। सो इट डजंट मैटर कि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जी एप्स को प्रमोट किया नहीं किया। हमने तो यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे बेटिंग जो है वो की जा रही है, या उसको प्रमोट किया जा रहा है, इंस्टिगेट किया जा रहा है, या बेट किया जा रहा है बेटिंग के अंदर, और उसके बरक्स उसके इवज में उसके अगेंस्ट जो ऑफेंडर है उसके अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं। सो हमें मोटिव समझ आ रहा है कि भाई ये शख्स समझता था कि ये क्या कर रहा है, राइट, क्या इसकी इंटेंशन है, और साथ ही इसको ये भी मालूम था कि कानून क्या है। बिकॉज अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये कोर्ट के सामने अपना ग्राउंड नहीं ले सकते कि आपको कानून मालूम नहीं था। इक्विटी का प्रिंसिपल ये है कि हर शख्स को पता होना चाहिए कि कानून क्या है। तो अगर तो वो कहते हैं भाई मुझे पता नहीं था कानून क्या है, देन दैट वुड नॉट होल्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सो वाई के अंदर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई पार्टीज का मोटिव क्या था, राइट। अब आप नोट कर रहे होंगे कि एक एक चीज के पीछे कितनी ज्यादा मंतक, कितनी ज्यादा सोच जाती है। हो सकता है ये सारे चीजों को आइडेंटिफाई करने में आपको 5 मिनट लगे, राइट, लेकिन ये इश्यूज को स्ट्रक्चर करना, इन इश्यूज के ऊपर सोचना, इनके पीछे रीजनिंग समझना एक बाकायदा पूरी जूरिस्प्रूडेंस है, राइट। ओके, सो वाई के अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पार्टीज के मोटिव क्या है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आया आप आइडेंटिफाई करें क्या वो एक्शंस इटसेल्फ इलीगल थे कि नहीं थे, कि क्या कानून के अंदर उनकी इजाज़त कहीं ना कहीं मौजूद थी, राइट। तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया यार एक्शंस जो हैं वो विद इन द स्कोप ऑफ लॉ है या आउटसाइड द स्कोप ऑफ लॉ है। अगर क्रिमिनल मैटर के अंदर मैंने आपको डकी भाई की एग्जांपल दी, सिविल नेचर के मैटर के अंदर आपके सामने एग्जांपल आ जाएगी कि भाई अगर एक सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और एग्रीमेंट जो है वो तय पा गया है, और एग्रीमेंट तय पाने के बाद सेलर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है, राइट। इससे पहले कि पोजेशन बायर को दी जाए, सेलर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है। तो फिर वहां पे सवाल उठता है भाई कि क्या सेलर विद इन द स्कोप ऑफ देयर पावर एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वो अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, राइट। सो आपने यहाँ पे वाई, मोटिव ऑफ द पार्टी समझना है, और आपने देखना है वाई इज द एक्शन इटसेल्फ an actionable claim, a cause of action, or why the action itself is an offense itself. फाइन, तो ये हो गया हमारे 4। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्शन कहाँ पे हुआ है, राइट। वेयर was this action, where has this action taken place? This is important because this resolves the issue of jurisdiction. अब अगर क्रिमिनल केसेस के अंदर एक
इलाके के अंदर क्राइम कमिट किया जाए, मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर मुगलपुरा में क्राइम कमिट किया जाए, तो उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन मुगलपुरा के थाने की होगी, राइट? आपने आइडेंटिफाई करना है कि जी वेयर हैज़ द एक्शन टेकन इफेक्ट। तो ये नहीं होगा कि भाई मुगलपुरा के अंदर अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसका एफआईआर जो है वो इकबाल टाउन के थाने में रजिस्टर हो रही हो। नो, दैट्स नॉट द लॉ, राइट? और ये आपने शुरू में मेन इश्यूज जो है ना इनको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है? जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे इशू तो नहीं आ रहा कोई, ठीक है? फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है, अच्छा ये कौन से कानून के मुताबिक है, क्या कौन सी जो पार्टीज हैं वो अगर स्टेट की पार्टीज हैं तो वो कौन से कानून के मुताबिक काम करती है, अगर इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, राइट? दोनों की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एनसीसीआईए ने डकी भाई के ऊपर अगर केस रजिस्टर किया है तो वो उन्होंने पीका एक्ट के तहत किया है। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा एफआईआर मैंने देखी, एफआईआर के अंदर यार पीका एक्ट का सेक्शन 2, 3, 7, 9, 12, 13 के तहत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, और पीपीसी के 2 और सेक्शन हैं उनके मुताबिक इल्ज़ाम लगा दिया गया, राइट? तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया यार, अच्छा एक्शंस जो हैं ये कानून है जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, राइट? और दूसरा, डकी भाई के केस में आप नोट करेंगे कि डकी भाई ने अपनी वीडियोस तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर लगा दी, ठीक है? अब जब भी कोई शख्स चाहे वो जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के डकी भाई की वीडियोस देख रहा और वहाँ पे उसके सामने प्रमोशन आ जाए एक बेटिंग ऐप की, राइट? तो क्या वहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर क्या जीबी के अंदर भी आपकी एफआईआर कट सकती है कि नहीं कट सकती? तो यहाँ पे सवाल उठता है कि इटसेल्फ, सबसे पहला वो शख्स जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस कहाँ पे कमिट हुआ है, राइट? और दूसरा कि कौन सी जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है, वो शख्स कहाँ रहता है, ऑफेंडर कहाँ रहता है, राइट? तो आपने आइडेंटिफाई किया यार कि अच्छा जो ये शख्स है ना, ये वीडियोस इसने बनाई है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, ठीक है? तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया यार जुरिस्डिक्शन यहाँ पे ऑफेंस इटसेल्फ जो कमिट हुआ है ना वो लाहौर के अंदर हुआ, तो फिर लाहौर की जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे, ठीक है? एनसीसीआईए के केस के अंदर एक ही डिपार्टमेंट है जो कि पूरे लाहौर के ऊपर काम करता है, तो इसके अंदर ये आम पुलिस की तरह नहीं है कि हर मोहल्ले के जो है वो अलहदा से एक पुलिस स्टेशन है, बल्कि एनसीसीआईए पूरे पंजाब का एक ही है और इनके मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। सो यहाँ पे मैटर करता है कि क्या ऑफेंस लाहौर में कमिट हुआ है, तो यस, जो वीडियो इटसेल्फ अपलोड हुई है वो लाहौर के अंदर हुई है, वीडियो इटसेल्फ रिकॉर्ड हुई है वो लाहौर के अंदर है, देयरफॉर द जुरिस्डिक्शन लाइज विद द ब्रांच ऑफ एनसीसीआईए इन लाहौर, राइट? सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वेयर का एलिमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर एफआईआर लाहौर के अलावा कहीं और किसी और शहर के अंदर कटती तो फिर आपके सामने एक जुरिस्डिक्शनल एरर का सवाल आ जाता कि यार वीडियो तो रिकॉर्ड कहीं और की गई है, राइट? ये शख्स रहता कहीं और है लेकिन एफआईआर जो इसके ऊपर की गई है वो किसी और शहर के अंदर की गई है, राइट? सो एक जुरिस्डिक्शन का एक ग्राउंड बन जाता है आपका जब आप लीगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देखें ये फोर्थ या फिफ्थ, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही फोर्थ या फिफ्थ सब पॉइंटर, वहाँ पे आपको एक अपने केस का ग्राउंड मिल गया यहीं पे, और ये रिसर्च के अंदर बिल्कुल शुरू में ही मिल गया। विद इन आवर फर्स्ट 40 मिनट्स यू वर एबल टू आइडेंटिफाई कि यार ये जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे पॉसिबली इशू बन सकता है, राइट? एंड देन फाइनली जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट का लास्ट सब पॉइंट है वो ये कि हाउ, तो क्या जब एक्शन कमिट हुआ और क्या उसके अंदर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, पहला सवाल। सो अगर क्राइम कमिट हुआ है तो उसके अंदर क्या एक शख्स को जो अरेस्ट किया गया है उस अरेस्ट के अंदर क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया कि नहीं किया गया? आप आइडेंटिफाई करेंगे यार ये ऑफेंसेस जो हैं इनके ऊपर क्या बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, राइट? ये सीआरपीसी के अंदर आप पीछे स्केड्यूल के अंदर देखेंगे या पीका इटसेल्फ के अंदर आप देखेंगे, उसके अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ होगा कि कौन सा ऑफेंस जो है उसमें आपको वारंट की ज़रूरत है अरेस्ट के लिए, किसमें नहीं है, राइट? सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा अगर वारंट की ज़रूरत थी तो क्या वारंट लिया गया नहीं लिया गया? अगर वारंट की ज़रूरत नहीं थी तो क्या यहाँ पे लॉफुल था उसको अरेस्ट करना, फर्स्टली, और सेकेंडली जो एक्शन था इटसेल्फ, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया क्या वो प्रोपोर्शनल टू द ऑफेंस इटसेल्फ था कि नहीं? यानी कि ये नहीं कि आपने एक शख्स जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर अगर पकड़ा जाए
तो आप जो है वो सारी मीडिया को इकट्ठा करके और फिर कहें ये देखें हमने इस शख्स को अरेस्ट कर लिया है, ये उसकी फुटेज है, ये हमने उसको हथकड़ी आपके सामने लगा दिया। नो, right? This act itself would not be proportional to the offense itself, which has not even been proved yet, right? So यहाँ पे फिर एक आपने हाउ का एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लेना है कि जी ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया, नहीं किया गया, और क्या एक्ट इटसेल्फ जो था, प्रोसेस जो था, वो क्या लॉफुल तरीके से फॉलो किया गया और वो प्रोपोर्शनल था कि नहीं था। ओके, एक्सेलेंट। सो फर्स्ट हमने पॉइंट कॉन्ग्रेचुलेशंस कवर कर लिया। सेकंड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया यार क्या इश्यूज जो हैं वो हमने तलाश करने हैं। अब आपने उन तमाम इश्यूज को कहीं ना कहीं लिख लेना है, ठीक है। ये वो लीगल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। अब आपके सामने आई बिलीव के 7-8 पॉइंट्स सामने आ चुके होंगे जिनके ऊपर आपने लॉ तलाश करना है। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आपने कानून कैसे तलाश करना है, वेयर डू यू गो टू कलेक्ट द लॉ। अब आई नो कि आप में से बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, आप में से बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने लॉ मूव्स कर लिए होंगे, सो मुझे इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एक कानून में प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। बट जस्ट एज एन ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आपके सबसे पहले तो स्टैचूट्स आ जाते हैं, वो कवानीन जो आपके पार्लियामेंट के पास से पास हुए होते हैं, या आपके ऑर्डिनेंस होते हैं, या आपके स्टैचूट्स के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड, फिर आपके केस लॉज आ जाते हैं, प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, आपकी कोर्ट्स ने इसके ऊपर अगर कोई फैसले सुनाए हैं तो उनमें क्या कानून दिया गया है। और थर्डली आप इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर चले जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर टैक्स का मामला है, कोई SRO है, तो उसमें आप FBI की वेबसाइट पे चले जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देखें यार SRO है यहाँ पे, आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन तलाश कर रहे हैं तो आप स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देखेंगे यार इससे मुतालिक कोई नोटिफिकेशन है कि नहीं, राइट। सो ये आपके 3 प्राइमरी सोर्सेज आ जाएंगे, यानी कि स्टैचूट्स, केस लॉज और फिर ऑफिशियल वेबसाइट्स। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि आपने स्टैचूट्स को तलाश कैसे करना है। एक तो अक्सर ऐसे होता है कि कोर्ट्स के अंदर कोई वकील साहब कानून पेश करते हैं और फिर पता चलता है कि वो कानून अमेंड हो चुका है, या फिर वो कानून पेश करते हैं और पता चलता है कि वो कानून इटसेल्फ अभी तो लागू ही नहीं हुआ, राइट। सो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कानून इस वक्त लागू हो रहा है, कौन सा कानून इस वक्त एप्लीकेबल है। उसके लिए जो रिलायबल सोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर, वो हैं आपका सबसे पहला जो फेडरल आपके स्टैचूट्स हैं, वो आपको पाकिस्तान कोड से मिलेंगे, राइट। ये वेबसाइट है पाकिस्तान कोड, यहाँ स्लाइड में भी लिखी हुई आ रही है। यहाँ से आपको आपके फेडरल कवानीन मिलेंगे अप टू डेट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पंजाब के अंदर हैं तो फिर आपको पंजाब लॉज की वेबसाइट है, वहाँ से आपको जेन्युइन रिलायबल केसेस मिलेंगे, स्टैचूट्स मिलेंगे, या पंजाब कोर्ट की वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिलेंगे, राइट। और थर्डली ऑफिशियल वेबसाइट्स। सो मिसाल के तौर पे आप फाइनेंस एक्ट तलाश कर रहे हैं तो वो FBI की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, राइट। आप अगर FIO का ऑर्डिनेंस तलाश कर रहे हैं तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस आप अगर तलाश कर रहे हैं तो वो आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, राइट। सो अप टू डेट ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर भी अप टू डेट कवानीन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्टैचूट्स आपको पता चल गया कि रिलायबल स्टैचूट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। फिर सेकंड, आपने केस लॉज कहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं। अब मैं आपके सामने एक डाइजेस्ट खोल रहा हूँ, इसमें कुछ तो केस लॉज की किताबें होती हैं, रिसाले आपके हर महीने निकलते हैं। मिसाल के तौर पे आई डोंट नो अगर आपको ये नज़र आ रहा है, बट ये PLD है मार्च के एडिशन का, इस तरह के रिसाले निकलते हैं और फिर साल के एंड पे ये रिसालों के बदले में आपको पूरी किताब मिल जाया करती है, राइट। तो सबसे पहले केस लॉ तलाश करने के लिए आपके रिसाले मौजूद हैं और इसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड कवानीन के लिए स्पेशलाइज्ड रिसाले हैं, राइट। सो आपके PLD हाई कोर्ट के मैटर्स के और सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स से डील करता है, और ना सिर्फ ये बल्कि PLDs के अंदर आपके जर्नल आर्टिकल्स भी छपते हैं जो कि आगे हम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। SCMR, इसके अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस छपते हैं। YLR ईयरली लॉ रिपोर्टर, इसके अंदर आपके सिविल और क्रिमिनल दोनों छपते हैं। ईयरली लॉ रिपोर्टर के नोट्स
YLRN, उसके अंदर भी अगेन आपके सिविल क्रिमिनल मैटर्स के मिक्स छपते हैं, MLD के अंदर भी। फिर उसके बाद आपके स्पेशलाइज्ड कुछ रिसाले आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिर्फ सिविल लॉ से रिलेटेड केसेस देखने हैं तो फिर वो आपके CLC में आपको मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ कॉर्पोरेट से रिलेटेड डिसीजंस देखने हैं, कंपनी से रिलेटेड, तो वो आपके CLD के अंदर आएंगे, कॉर्पोरेट लॉ डिसीजंस। अगर आपने क्रिमिनल से रिलेटेड देखने हैं तो पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है, टैक्स से रिलेटेड देखने हैं तो पाकिस्तान टैक्स डाइजेस्ट है, राइट। सो इस तरह से कुछ आपके जनरल जर्नल्स हैं और कुछ आपके स्पेशलाइज्ड जर्नल्स हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिक कानून जाके तलाश कर सकते हैं। सो आप अपनी फील्ड ऑफ प्रैक्टिस के मुताबिक जो भी रिसाला है उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने आप को अपडेट करते रह सकते हैं। फाइन। एंड देन फाइनली हमारे पास यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिसाला है और वो है ये। आप लोगों को दिख रहा है ये? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके, एक्सीलेंट। तो ये है आपका पाकिस्तान एनुअल लॉ डाइजेस्ट। ये वो रिसाला है जो कि जिस पे आप रिलाई करते हैं जब आपको कहीं पे भी कोई कानून ना मिल रहा हो, राइट। और ये जब आप लोग आगे लॉ ऑफिसेस के अंदर जाके काम करना शुरू करेंगे या इवन अपनी लॉ फर्म शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये वो किताब, ये वो रिसाला है जो आपको उन सवालों के जवाब देगा जब बाकी तमाम सोर्सेज फेल कर जाएंगे। पाकिस्तान एनुअल लॉ डाइजेस्ट, इसको ALD भी कहा जाता है। इसका कुछ ऐसा आप लोगों के सामने जैसा कवर आ रहा है, कुछ ऐसा कवर होता है और इसके आमतौर पे 5 या 6 एडिशंस आते हैं हर साल के। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे पार्ट 4, पार्ट 5 लिखा हुआ है और इसमें अल्फ़ाबेटिकली टॉपिक्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट्स किस तरह लिखे होते हैं। सो अल्फ़ाबेटिकली इसमें कंटेंट्स चल रहे होते हैं, पीनल कोड, पेनल्टी, फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी काउंसिल, सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो यहाँ से आप कंटेंट्स तलाश करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से मुतालिक कोई कानून तलाश कर रहे हैं, राइट। तो आप देखेंगे, अच्छा 2019 में मैं जाके देखता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से मुतालिक कोर्ट का क्या पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे आप कंटेंट्स में आ जाएंगे। कंटेंट्स में आके आप टी की तरफ जाएंगे। अभी ये पी चल रहा है, पी के बाद आगे आ जाएगा QRST। टी के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आप सीधा आ जाएंगे उस पेज के ऊपर। ये पेज नंबर लिखा हुआ है, आप नोट करेंगे कि कानून का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे पेज नंबर लिखा हुआ है। वो पेज नंबर आप खोल के देख लेंगे। मिसाल के तौर पे ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पेज हमने खोल लिया। अब हम स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पे तलाश कर रहे हैं जजमेंट सेक्शन 52 से रिलेटेड, या हम तलाश कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अगर इंजंक्शन सीक करनी है तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया है। तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे कि छोटे छोटे से हेड नोट्स लिखे हुए हैं। ये हेड नोट्स आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि अच्छा यहाँ पे कानून जो है वो क्या कहता है। अब यहाँ पे आप ये छोटा सा हेड नोट पढ़ लेंगे, इससे आपको एग्जैक्ट कानून ठक करके पता चल जाएगा, यार ये कौन सा कानून जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और उसके नीचे यहाँ पे साइटेशन भी दी हो। तो आप कहेंगे ज़बरदस्त, फिर मैं सीधा साइटेशन के ऊपर रेफर करूँगा और फिर वहाँ से मैं कानून निकाल लूँगा। सो ALDs लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिसर्च को बहुत स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है, बिकॉज लॉ के अंदर आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन का भरमार होता है और बहुत आसान होता है कि आप इंफॉर्मेशन के अंदर जब पढ़ने बैठें तो या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि इतना ज़्यादा कौन पढ़े, या फिर आप किसी और रूट के ऊपर निकल जाते हैं जो आपके आइडेंटिफाइड इश्यूज से डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है। ओके, फिर उसके बाद आपके आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। अच्छा, सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जी आपकी जो किताबों के साथ कमेंट्रीज हुआ करती हैं वो आपकी सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं। सो मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर यहाँ पे इन्होंने मिसाल के तौर पे ये है हमारे सामने सेक्शन 72 राइट्स ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन। इसके नीचे यहाँ पे इन्होंने साइनॉप्सिस कमेंट्री दी हुई है। इन कमेंट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको ना सिर्फ ये पता चल जाएगा कि कानून क्या है, बल्कि आपको ये पता चल जाएगा कि उस कानून की हिस्ट्री क्या है। ना सिर्फ हिस्ट्री पता चल जाएगी बल्कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोर्ट्स का इनके ऊपर क्या ओपिनियन है, राइट। सो इससे पहले कि आप डायरेक्टली ओरिजिनली अगर आपको स्टैचूट के ऊपर जाना पड़ता, स्टैचूट पढ़ते, फिर उसके बाद केस लॉ की तरफ आते, केस लॉ पढ़ते, ये 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे इसी के अंदर
लगा के आपको जो पॉइंट पता चलता है वो डायरेक्टली आपने किताब खोली, कमेंट्री के अंदर आपने सेकेंडरी सोर्स के तौर पे कानून पढ़ा और आपको जो 3 घंटे के अंदर दूसरे प्राइमरी सोर्स से पता चलना था वो आपको 3 से 4 मिनट के अंदर पता चल गया। सो आपने एफिशिएंटली अपना वक्त बचाया। राइट, सो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आपकी कमेंट्री की बुक्स आ जाती हैं। राइट, इसी तरह से इसके अंदर आपकी लॉ जर्नल के आर्टिकल्स आ जाते हैं, एक्सप्लेनेटरी बुक्स आ जाती हैं, प्रैक्टिकल गाइड्स आ जाती हैं। लॉ जर्नल्स नॉर्मली आपके पीएलडी के जो रिसाले हैं उनके अंदर बुक नंबर 6 होती है। बुक नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट की होती है, फिर उसके बाद प्रोविंसेस की होती है। जो लास्ट नंबर बुक होती है बुक नंबर 6, उनमें आमतौर पे जर्नल्स छपते हैं। राइट, सो लॉ जर्नल्स जो कि पाकिस्तानी ऑथर्स ने लिखे हुए होते हैं, रिप्यूटेड ऑथर्स ने लिखे होते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर्स ने लिखे होते हैं, जिनके ऊपर आप रिलाई करके और कोर्ट को किसी नए लीगल पॉइंट से आगाह कर सकते हैं, वो आपके लॉ जर्नल्स होते हैं। वो आपको पीएलडीज में आमतौर पे मिलते हैं, या फिर आप एक गूगल सर्च करें, वहाँ से भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट लॉ जर्नल्स पीएलडी के सबसे रिलायबल सोर्स होते हैं, सबसे लेटेस्ट सोर्स होते हैं। एंड देन फाइनली आपके अगेन गवर्नमेंट वेबसाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज यहाँ से आपको गवर्नमेंट की या उस डिपार्टमेंट की पॉलिसीज पता चल जाती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि पाकिस्तान के टैक्स बार एसोसिएशन मिसाल के तौर पे, उनकी वेबसाइट पे अक्सर कानून अगर कोई अमेंड होता है टैक्स का, तो उससे मुतालिक कोई ना कोई जर्नल छाप दिया जाता है कि जी इस कानून का मौजूदा टैक्स पेयर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। राइट, अब ये रिसर्च करके किसी ने एक जर्नल आर्टिकल छाप दिया, आपके लिए आसानी हो गई कि जी मुझे बजाय इसके कि कानून में पढ़ूँ, कानून पढ़ने के बाद उसको मैं अप्लाई करूँ अपने क्लाइंट के ऊपर और फिर मैं समझूँ अच्छा यार इसका एनालिसिस करके अच्छा ये मतलब बन सकता है, ये मतलब बन सकता है, आपके लिए काम आसान हो गया कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाके, स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स, लॉयर्स की वेबसाइट्स यानी कि बार एसोसिएशन इटसेल्फ की, जहाँ पे रिलायबल आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जहाँ पे आपकी उनकी पॉलिसीज आपको नजर आ जाएगी। सो वो आपके सेकेंडरी सोर्सेज बन सकते हैं। एंड देन फाइनली आपके आते हैं डिजिटल टूल्स। राइट, अब मैं तो इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि एआई जो है उसको 100% लीगल रिसर्च के अंदर यूज करना चाहिए। राइट, ये बिल्कुल आई थिंक कि जो लोग कहते हैं कि एआई को आप रिसर्च के अंदर यूज ना करें, ये वैसे ही बात करते हैं जैसे ओरिजिनली हाँ बाबे जो हुआ करते थे वो कहा करते थे कि आप किताबों से सर्च करें और जिस वक्त लॉस्ट साइट्स आई थी तो उनसे ना सर्च करेंगे कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये बिल्कुल वही वाली आर्ग्यूमेंट है कि जी आप किताबों से सर्च करें, लॉस्ट साइट से सर्च करें और एआई से सर्च ना करें। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर के एआई को एक ऐसा टूल है जो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा, और जो लोग इसको नहीं यूज़ करते वो एक बहुत बड़े सोर्स से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिजिटल टूल्स के अंदर आपका एआई आता है, बट हमें ये मालूम है कि, और आई नो कि इससे पहले कि आप लोग अपना हाथ खड़ा करके कहें कि भाई एआई जो है वो हेलुसिनेशंस करता है, गलत गलत केसेस कोट कर देता है, जो आप कहना चाहें, जो आप सुनना चाहें वो आपको बता देता है, और आप उसकी गलती पॉइंट आउट करें तो वो कहता है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। इससे पहले कि आप ये कहें, मैं ये कहूँगा कि जो आपको एआई से कहें कि जी मुझे आप इसके ऊपर रिसर्च बताएं, रिसर्च आपको मिल जाए, अगर कोई केस लॉ हो तो उसको आप क्रॉस चेक करें, जजमेंट को पूरा पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। जजमेंट जैसे मिलती है डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग द आंसर टू योर क्वेश्चन, इट डजंट मैटर वेयर यू गेटिंग इट। राइट, बट एक दफा आपके पास कानून आ जाए ना तो उस कानून को जरूर पढ़ना है, बिकॉज एआई जो है वहां पे मिस्टेक करता है जो आपको आके बाद में तंग करेगी कोर्ट में। राइट, तो आपके डिजिटल सोर्सेज के अंदर आपके सबसे पहले तो एआई आ जाता है, एआई को 100% यूज करें, लेटेस्ट एआई के चैटबॉट्स को यूज़ करें, वो आपकी मदद करने के लिए ही बने। सेकेंडली आपके इंटरनेट के ऊपर साइटेटर्स के नाम से किताबें पड़ी हुई हैं, सिविल साइटेटर्स, क्रिमिनल साइटेटर्स, ये वो जगह हैं जहाँ से आपको मुफ्त में एक कानून के ऊपर, एक लीगल टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट केस लॉ मिलेगा। राइट, लॉ बुलेटिन्स हाई कोर्ट के एवरी 2 वीक्स छपते हैं इनकी वेबसाइट पे, वो देखें। गूगल स्कॉलर एक बहुत अच्छा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स कानून को तलाश करने के लिए। इसी तरह से अगर विद इन पाकिस्तान आपको कानून नहीं मिल रहा तो फिर जस्टिया एक वेबसाइट है, इंडियन कानून एक वेबसाइट है, SCC ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहाँ से आपको कानून मिल जाएंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट आई थिंक कि आजकल के ज़माने में जब AI भी आ चुका है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो ये कहना कि भाई मुझे रिसर्च करने के बाद कुछ नहीं मिला, ये गलत बात है, और आई थिंक कि ये जस्टिफाइबल आज के ज़माने में नहीं रहा।
तो इवन अगर आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ से कुछ ना मिले, आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि बिल्कुल ही कोई नया लीगल पॉइंट आ गया, वरना मेजॉरिटी लीगल पॉइंट्स के ऊपर आपके मुल्क में नहीं तो इंडिया में नहीं तो यूके यूएस कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी होगी। ओके, सो ये आपके आगे फ्री डिजिटल टूल्स और आपके पेड डिजिटल टूल्स के अंदर आपके वेस्ट लॉ आ जाता है, ईस्ट लॉ आ जाता है, पाकिस्तान लॉ साइट आ जाता है, और जितने भी आपकी लॉ साइट्स हैं ये तमाम आपकी पेड वर्जन्स में आ जाती हैं। बाय द वे पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर आपके पीएलडी के जो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं वो भी छपते हैं। और लेटेस्ट जो रिसाले होते हैं वो भी एज इट इज़ बिल्कुल होम पेज के ऊपर आपको दिख रहे होते हैं। तो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ लर्निंग न्यू लॉ, सर्चिंग न्यू लॉ। ओके, आई थिंक कि यहाँ पे हम एक ब्रीफ सी ब्रेक कर लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद हम 5 मिनट्स के बाद वापस आते हैं, और फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि बाकी का हिस्सा कवर कर लें। सो 5 मिनट्स की ब्रेक and then we're back at 9:38. I will see you guys then. देख लूँगा जहाँ पे मैं जिनका जवाब दे सकता हूँ उनको मैं अभी दे दूँगा, नहीं तो फिर उनके जवाब मैं बाद में ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। सो डोंट वरी, आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, एंड आई एम श्योर सर हम कर लेंगे आइडेंटिफाई। ओके, एक्सीलेंट। सो रिज्यूम करें बाकी का हिस्सा। जी सर। ग्रेट। सो थर्ड स्टेज जो आपने करनी है अपनी रिसर्च में वो ये कि अब आपको पता चल गया यार कि ठीक है क्या लीगल इश्यूज है। ग्रेट। सेकंड, आपको पता चल गया अच्छा कानून जो है वो मुझे कहाँ से मिलेगा। एक्सीलेंट। अब आपका सवाल ये है कि रिसर्च आपने शुरू कैसे करनी है। इतना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन का भरमार आपके सामने आ गया। सवाल ये है कि इस इन्फॉर्मेशन का हम करें क्या। सबसे पहला जो आमतौर पे एक्सपीरियंस लॉयर्स, तमाम लॉयर्स बल्कि करते हैं वो ये कि वो हमेशा एज अपोज टू जो नाम सजेस्ट कर रहा है कि जी प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सेकेंडरी मतलब सेकेंड, आमतौर पे लॉयर्स सेकेंडरी सोर्सेज से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट मेक्स योर वर्क ईजियर। आपके सेकेंडरी सोर्सेज किताबों के नीचे कमेंट्रीज होती हैं, आपके सेकेंडरी सोर्सेज आपके जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, या इवन गूगल सर्च भी आपकी सेकेंडरी सोर्स है। राइट, अगेन लाइक आई सेड कि आपने अपने जो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं उनके आंसर तक कैसे पहुंचे हैं इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इट्स के आपके पास आंसर हो सवाल का। राइट, सो आमतौर पे लोग सेकेंडरी सोर्सेज से अपनी रिसर्च शुरू किया करते हैं। राइट, उस वहाँ से आपको कानून का कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि यार किस कॉन्टेक्स्ट में कानून बनाया गया था। आमतौर पे ये प्रीएम्बल में लिखा जाता है कानून के, बट आप अगर सेकेंडरी सोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कानून बनाया गया। वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा अगर इस स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर कोई ख़ास मुश्किल से अल्फाज लिखे हुए हैं तो कोर्ट ने उनको कैसे इंटरप्रेट किया है, क्या उनकी डेफिनेशन दी है, क्या कोई यहाँ पे टेस्ट दिया गया है कोर्ट की तरफ से। मिसाल के तौर पे मैं आई थिंक अक्सर अपने क्लास के अंदर एग्जांपल्स दिया करता हूँ। अगर प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा रहा हूँ तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल एसेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या फ़र्क है। राइट, अब कहने को तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इटसेल्फ के अंदर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे सिर्फ 4 अल्फाज लिखे हुए हैं कि इट डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर एटसेट्रा जो भी लिखा हुआ है। राइट, वहाँ से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। बट देन आप अगर कमेंट्री की तरफ रिवर्ट करेंगे तो वहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा यार कि एक टेस्ट दिया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का, एक टेस्ट दिया गया है इसी तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ प्राइमरी सोर्स से स्टार्ट करते, आप कहते यार मैं पहले कानून पढ़ूंगा, फिर मैं लॉ साइट पे जाऊंगा, या मैं एएलडी के अंदर जाके देखूंगा कि जी इस प्रोविजन के अंदर कौन से केसेस हैं, उन केसेस को पढ़ूंगा, फिर मैं उन केसेस में से जॉट डाउन करूंगा कौन सा पॉइंट है, कौन सा केस है जो इस पॉइंट को एड्रेस कर रहा है, तो आपका 24 घंटे तो कहीं नहीं गए, ईजिली 24 घंटे कहीं नहीं गए।
सो सेकेंडरी सोर्स की तरफ आप आएंगे, कमेंट्री के अंदर आपके सामने पहली 5-6 लाइन के अंदर ये बात सामने लिखी भी आ जाएगी। सो देन आपने अपना वक्त बचा लिया, राइट। सो आमतौर पे जब रिसर्च शुरू की जाती है तो सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू शुरू की जाती है। अच्छा, फर्स्ट ये हो गया। फिर दूसरा, आपको जी पता चल गया यार सेकेंडरी सोर्सेज से कि कानून कौन सा है, सेक्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार अच्छा सेक्शन हमें पता चल गया, लेकिन इस सेक्शन से मुतालिक स्पेसिफिक हमें कानून को तलाश करना है। मिसाल के तौर पे दोबारा से मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल पे आता हूँ। आप कहते हैं यार कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक एग्रीमेंट हुआ था और उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है ना उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बस उन्होंने लफ्ज़ लिखा था एग्रीमेंट के अंदर और उसको बेचने का एग्रीमेंट हो गया। अब जब डिलीवरी की बात आई तो जाके देखा तो जी ना बिल्डिंग के अंदर जो है वो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, ना बिल्डिंग के अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, ना लॉक्स लगे हुए हैं, ना कुछ लगा हुआ है, राइट। सो आप कहते हैं यार ये स्पेसिफिक लीगल क्वेरी है जिसके ऊपर मैंने सर्च करना है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर खिड़कियाँ शामिल हैं, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर दरवाजे शामिल हैं, नहीं शामिल। तो फिर आप आमतौर पे क्या करते हैं कि आप या तो किताब के इंडेक्स में चले जाते हैं। आप लोगों को आई एम श्योर कि अगर किताब आपने पढ़ी है, किताब से सर्च कभी किया तो फिर इस तरह का, आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट इसकी मैं आई थिंक तस्वीर बाद में शेयर कर दूंगा। बट इस तरह का एक आपके सामने इंडेक्स आ जाया करता है। इंडेक्स के अंदर स्पेसिफिक फ्रेज लिखा होता है और उसके आगे पेज नंबर लिखा होता है। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस मोटी सी किताब के अंदर कहाँ पे वो स्पेसिफिक चीज़ लिखी हुई है जो मैं तलाश कर रहा हूँ, राइट। सीपीसी मिसाल के तौर पे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर भी इंडेक्स तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप सॉफ्ट कॉपी में है नहीं, कंट्रोल एफ आप करके कीवर्ड तलाश कर नहीं सकते, तो फिर आप पीछे इंडेक्स में चले जाते हैं। आमतौर पे किताबों के एंड पे इंडेक्स दिया होता है, वहाँ से आप स्पेसिफिक कीवर्ड तलाश करके और फिर आप अपने स्पेसिफिक पेज, रेलिवेंट पेज के ऊपर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे आपको कानून मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो अब आपने पहले जो है वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए, क्वेश्चंस के ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च कर ली, आपको सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू आइडिया हो गया यार कि अच्छा अब मैंने तलाश क्या करना है, राइट, और क्या पॉसिबली इसके ऊपर व्यू बन सकता है। फिर अब आप आएंगे स्टैट्यूट्स की तरफ और केसेस की तरफ। दिस इज द टाइम व्हेन यू कम टुवर्ड्स द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। अब आप स्टैट्यूट्स की तरफ आएंगे, आप देखेंगे स्टैट्यूट में अच्छा स्पेसिफिक प्रोविजन, कानून जो है वो उसके अल्फाज क्या कहते हैं। केस की तरफ जाएंगे, कहेंगे अच्छा स्पेसिफिक अब हमें मालूम है यार कि क्या लीगल क्वेरी है जो हम तलाश कर रहे हैं। हम तलाश कर रहे हैं मिसाल के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर खिड़कियां शामिल हैं कि नहीं है बिल्डिंग की, ये क्वेरी आपकी। तो आप कहेंगे अच्छा अब मैं कानून की तरफ जाऊंगा, अब मैं जॉट डाउन कर सकता हूँ एग्जैक्टली जब मैं इतने सारे केसेस, कोई 3000 मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉ साइट के ऊपर मिसाल के तौर पे जाके लिखता हूँ और सामने 3000 केसेस आ जाते हैं, तो फिर मैंने उन 3000 केसेस के अंदर से स्पेसिफिक विंडोज से मुतालिक केस कैसे तलाश करना है। आप आके कीवर्ड लिख देंगे अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी विंडोज, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो था ज़रा थोड़ा प्रिसाइज आएगा, राइट। उसके अंदर फिर आप मजीद खुद पढ़ के हेड नोट्स आइडेंटिफाई करेंगे अच्छा कौन सा केस मेरे ऊपर लागू होता है और वो फिर आप वहाँ से उठा लेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं खुद गलती किया करता था और मुझे खुद दोहरा दोहरा के दुरुस्त करने में बहुत टाइम लगा है, जब मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस शुरू की उस वक्त भी मुझे ये इशू था, और जब मैं यूके में प्रैक्टिस शुरू की उस वक्त भी मैं ये इशू फेस कर रहा था कि जिस वक्त आप अपनी रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आपने अपनी तमाम रिसर्च को डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। आपने अपनी रिसर्च को डॉक्यूमेंट करना है। आपने अगर कोई ऐसा कानून पढ़ लिया है, कोई ऐसा केस लॉ पढ़ लिया है जो आपके केस से रिलेट नहीं करता, लेकिन अब आपने पढ़ लिया तो आप उसको अपने रजिस्टर के अंदर लिख लें, चाहे आपने ऑनलाइन अपना रजिस्टर बनाया हुआ है लीगल या फिजिकल फॉर्म में बनाया हुआ है रजिस्टर, या इवन आपने अपने नोट पैड के अंदर लिख लेना है कि यार ये जजमेंट थी, इस साइटेशन के अंदर ये बात हुई थी, और उसको आपने कहीं पर संभाल के रख लेना है। इसकी वजह ये कि इन केस इन फ्यूचर अब आप मेहनत तो कर रहे हैं और कानून तो पढ़ रहे हैं तो आपकी नॉलेज में इजाफा तो हो रहा है। इन फ्यूचर अगर आपके सामने कोई प्रोपोजिशन ऐसी आ जाती है, और अक्सर ऐसे होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो अक्सर ऐसे होता है कि आपने केस के ऊपर रिसर्च किया, आपको रेलिवेंट केसेस जो नहीं मिले, वो बाद में ऐसा केस आ गया जिसमें
वो केसेस रिलेवेंट हैं। सो आपने उन केसेस की सारी जो आपने पढ़ा है मेन पॉइंट एक लाइनर, वन लाइनर, टू लाइनर के अंदर लिख लेना है कि इस साइटेशन में ये बात कही है, इस साइटेशन में ये बात कही है, उसको स्ट्रक्चराइज कर लेना है। आमतौर पे मैं तो वर्ड शीट पे बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और उसको मैंने ड्रॉप बॉक्स के ऊपर अपने पास सेव रखा हुआ है। कुछ लोग जो है वो इसको गूगल शीट्स पे बनाना पसंद करते हैं, कुछ इसको फिजिकल कॉपी में बनाना पसंद करते हैं, बट मुझे आसान लगता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाना और ड्रॉप बॉक्स पे सेव रखना, बिकॉज उससे मैं कंट्रोल एफ करके और सीधा कीवर्ड लिखता हूँ, फिर मुझे अपनी पुरानी रिसर्च से रिलेटेड केस लॉज मिल जाया करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप रिसर्च कर रहे हो, इवन आपको अगर रेलिवेंट चीज़ नहीं मिल रही, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। एंड देन फाइनली विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स हम ये लास्ट जो पोर्शन है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और वो ये है कि इफेक्टिवली आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहला, एक दफ़ा जब आपने लीगल इशू को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने उस लीगल इशू को अपने सामने पेज पे लिख के रख लेना है, साइड पे लिख के रख लें। दैट इज़ बिकॉज कि जिस वक्त आप केसेस पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आप के लिए डिट्रैक्ट होना बहुत आसान होता है। आपके सामने वो पेज रखा रहेगा जिसके ऊपर लीगल क्वेरी लिखी हुई है, तो आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं कि यार ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मेरे क्वेरी से रिलेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, राइट। सो लीगल जो इशू है उसको क्लियर टर्म्स के अंदर आप अपने कागज़ के ऊपर अपने सामने लिख के रख लें, कि ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे आपको दिखता रहे, नज़र आता रहे, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े, जी मैं कॉपी खोलूँ, कॉपी खोल के उसके अंदर मैं पेज निकालूँ, पेज निकाल कर तलाश करूँ, नहीं, सामने रखा हुआ होगा तो फिर आपके लिए आसानी होगी। वरना फिर आप एक ज़ोन में होते हैं जिसका केसेस पढ़ रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं यार मैं अब अपना ज़ोन तोड़ के पेज खोलूँ, पेज खोल के और फिर वो निकाल के मेरा ज़ोन टूट जाएगा, राइट। सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं अपने तौर पे अपने एक्सपीरियंस से सीखा और मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा ये कि आपके सामने जब आर्ग्यूमेंट्स आते हैं ना, आप नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि केसेस को पढ़ना सीखें, राइट, बिकॉज एज आई अंडरस्टैंड मेरी संडे को भी आप लोगों के साथ एक ब्रीफ सेशन है, सो उसमें शुरू में हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे कि केस लॉस को पढ़ना कैसे, राइट। बट बेसिकली आपने जब केसेस पढ़ने हैं तो आपने आर्ग्यूमेंट्स दोनों पार्टीज के आइडेंटिफाई करने हैं। आपने जब आइडेंटिफाई करने हैं तो फिर आपको ना सिर्फ ये पता चल जाएगा कि आपका अपना क्या आर्ग्यूमेंट है, बल्कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ओपोजिंग काउंसिल क्या आर्ग्यूमेंट्स देने वाला है, राइट। सो आप फिर उन आर्ग्यूमेंट्स का पहले से जवाब बना सकते हैं। आप लोग जो मूड कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, आप लोग पहले से इसके अंदर एक्सपीरियंस्ड होंगे। जो लोग मूड कॉम्पिटिशन्स नहीं कर रहे लॉ स्टूडेंट्स, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो मूड कॉम्पिटिशन्स मूटिंग ज़रूर करें, बिकॉज ये बाद में प्रैक्टिस के अंदर आपको बहुत मदद देते हैं। ना सिर्फ प्रैक्टिस के अंदर मदद देते हैं, बल्कि आपने अगर हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर पढ़ने जाना है, पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करना है, तो ये आपकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट समझी जाती है। ओके, अच्छा, अब सवाल ये है कि जब आपके सामने आपने रिसर्च कर ली लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा, राइट, तो फिर सवाल उठता है कि यार अब इसके ऊपर क्या कानून है भी कि नहीं। ठीक है, अक्सर तो शुरू में ऐसे ही होगा कि जी आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको कुछ उसके ऊपर नहीं मिल रहा, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सब इसी फेज से गुजरते हैं और सब इसी तरह से सीखते हैं, राइट। आपको अगर एक लीगल क्वेरी आपने लिखी है कागज़ के ऊपर और वो आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर अपने सवाल को रीफ्रेम करें, दोबारा लिखें उस सवाल को, उसके अल्फाज चेंज करें, राइट। उस तरह से आपको मिल जाएगा, लेकिन कानून आपको मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि इट डज़न्ट मैटर कि आप सवाल का जवाब कैसे पाते हैं, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके पास सवाल का जवाब हो, राइट। सो अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर अपने सवाल को दोबारा से लिखें, रीफ्रेम करें अपने सवाल को, नई कीवर्ड्स डाल के देखें। चैट जीपीटी आपको ढेरों कीवर्ड्स निकाल के दे देगा आपके टॉपिक से रिलेटेड। उन कीवर्ड्स को लॉ साइट के ऊपर जाके तलाश करें, किताबों में तलाश करें उन कीवर्ड्स को, वहाँ से आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि
जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, मैंने आपको बताया कि एक रिसर्च लॉग मैं अपनी रिसर्च लिखता जाता हूँ अपने डायरी के अंदर, अपडेट करता जाता हूँ कि ये साइटेशन में ये बात हुई है, ये बात हुई है, ये बात हुई है। साथ में आप ये भी आइडेंटिफ़ाई करें, ये भी लिखें कि यार मैं फलाँ रूट के ऊपर गया था और वो मेरे लिए काम नहीं किया। ये मैं आपको वो टिप बता रहा हूँ जो मैंने अपने बारेट लॉ के कोर्स के अंदर समझी है, ठीक है? और यूके में तमाम बैरिस्टर्स ये रूट फ़ॉलो करते हैं, चाहे बैरिस्टर्स हों, सीनियर बैरिस्टर्स हों, पाकिस्तान के अंदर अलबत्ता इतना ज़्यादा शायद फ़ॉलो ना होता हो सकता है सीनियर लॉयर्स जो हैं, वो अलबत्ता ये ज़रूर करते हैं। मेरे सीनियर मैंने मांडवीवाला एंड ज़फ़र में अपनी लॉ ट्रेनिंग की थी और वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ। उनकी एक ख़ुसूसी बात जो मैंने वहाँ सीखी वो ये थी कि अगर 1000 पेज का भी केस है ना, तो उनके आर्ग्यूमेंट जो है ना वो 1 पेज पे होते थे। राइट? तो 1000 पेज के आपने 1 पेज के अंदर कैसे लेके आना है, ये आपने रिसर्च के थ्रू लेके आना है, राइट? बुलेट पॉइंट्स आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के बनाते हैं, यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ और फिर इसके इसके पीछे किस बिना पे कहना चाह रहा हूँ, कौन-सा कानून है, कौन-सा इसके अंदर जो है वो केस लॉ लागू होता है, राइट? लेकिन आपने 1 पेज के अंदर अपनी पूरी 1000 पेज के अगर आपका केस है, उसके अंदर से आपने 100 पेजेस की रिसर्च की है, तो उस 100 पेजेस की रिसर्च को आपने 1 पेज के अंदर लेके आना है। ये आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? आप ऐसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तमाम सीनियर लॉयर्स यही करते हैं कि अगर रिसर्च जब कर रहे होते हैं, तो वो अपने रूट्स को नोट करते जाते हैं कि यार मैं इस रूट के ऊपर गया था रिसर्च के दौरान, ये रूट फ़ेल हो गया, राइट? मिसाल के तौर पे आपने कहा यार मैं जो हूँ ना वो आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि जी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में अगर होटल बेचा गया है, तो होटल के खिड़कियाँ और दरवाज़े जो हैं वो क्या ज़रूरी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर आप स्पेसिफ़िकली होटल के मुतालिक तलाश करेंगे, फिर आप कहेंगे कि यार मुझे तो होटल से मुतालिक कोई केस नहीं मिल रहा, राइट? तो आप उसको एक फ़ेल्ड रूट बना देंगे, यार मैंने स्पेसिफ़िक एक पर्पज़ के लिए बिल्डिंग का तलाश किया था, वो मुझे नहीं मिला, तो फिर आप उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आप कहते हैं यार ये फ़ेल्ड रूट हो गया, मुझे पता चल गया यार इस रूट के अंदर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आप कहते हैं अच्छा मैं रूट अपना चेंज करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ अच्छा अगर होटल नहीं तो फिर मैं मोटेल चेक करूँ, अच्छा अगर मोटेल नहीं तो मैं रेस्टोरेंट चेक करूँ, रेस्टोरेंट में चेक नहीं कर सकता तो मैं कोई फैक्ट्री चेक कर लूँ, बेसिकली कोई भी चीज़ जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बिल्डिंग यूज़ हो रही है, उस सूरत में मैं चेक कर लूँ, राइट? तो वहाँ से आप एक अपना रूट तब्दील कर लें, आप कहते हैं अच्छा ये वो जगह है जहाँ से मुझे मदद मिली है, आप सोर्सेज़ जॉट डाउन करते जाते हैं, इस किताब से मुझे मदद मिली है, इस वेबसाइट से मुझे मदद मिली है, इस ब्लॉग से मुझे मदद मिली है, राइट? सो इस तरह से आप एक ट्रेल बनाते हैं अपने रिसर्च का। ये भी बहुत ज़्यादा रिसर्च का ट्रेल बनाना इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि इसके ऊपर तो बारेट लॉ के अंदर एग्ज़ाम भी होता है, लोग फेल भी होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमें लॉ स्कूल्स के अंदर नहीं सिखाया जाता बट आगे जाके जो है वो अम, मुश्किल से सीखना पड़ता है। अच्छा अब फाइनली ये कि जब आप इर्रेलेवेंट सोर्सेज़ के ऊपर जाके और अपने आप ने रिसर्च नहीं करनी, आप अगर कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं किसी कानून से मुताल्लिक, अगर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है या कोई नॉन लॉयर बंदा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपना ओपिनियन बेस्ड ओपिनियन जो है ना वो बायस्ड किस्म का ओपिनियन देगा, राइट? सो आपने जो ओपिनियन दे रहे होते हैं ना उनको अवॉइड करना है, इररिलेवेंट सोर्सेज़ को अपनी रिसर्च के अंदर अवॉइड करना है। लास्टली कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है? वो इस तरह से पता चलेगा जब आप केस लॉज़ मज़ीद पढ़ रहे हों और बार-बार सेम चीज़ रिपीट हो रही हो। राइट? आप एक लूप के अंदर फँस जाएँ, हर एक केस के अंदर अल्टीमेटली कोर्ट यही डिसाइड कर रही हो या फिर ऐसे केस लॉज़ रेफ़र किए जा रहे हों एक केस में जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जिस वक़्त आप कहते हैं कि हाँ, अब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। Okay, with that, we're going to end our session for today and I hope to see you guys on Sunday. तो संडे को आई थिंक हमारा सेशन है। मीनवाइल आई थिंक एसोसिएशन का प्लान ये है कि आई थिंक आपको कुछ टास्क भी वो देना चाहते हैं। आई विल हैंड ओवर द चेयर टू द एसोसिएशन नाउ, तो वो आपको फिर आगे आइडेंटिफाई कर देंगे कि क्या आपने टास्क संडे तक कंप्लीट करना है। आई थिंक कि आज के सेशन और आने वाले कल के सेशन से मुताल्लिक़ कोई आपको टास्क देना चाह रहे हैं, वो आपको फिर एसोसिएशन आइडेंटिफाई कर देंगी। बट
I just want to thank the association itself. I also want to thank the participants जिन्होंने बहुत ही सब्र से इस सेशन को सुना और अपनी नींद पे काबू रखा और साथ में प्रोएक्टिव रहे, चैट बॉक्स के अंदर अपने सजेशंस देते रहे. I'm very thankful. And I will hand over the chair to the management. Thank you. On that excellent note, let's bring our first session to an end. First, please join me in giving a massive round of virtual applause to Barrister Ali Haider Najfi. Thank you, sir, Barrister sir, for an immensely informative and foundational session this evening. To all our participants, thank you for your brilliant engagement. A quick reminder that this was day first research practice. And now for what's next, tomorrow evening on day 2, we will put this research into action. We will move to the core of drafting, where our next expert will guide you through the practical process of structuring and writing a plan for trial courts using the research techniques you learned tonight. This is Moiser Rahman signing off on behalf of Pakistan Law Student Association. Thank you for spending your evening with us. We look forward to seeing you all again tomorrow. Have a wonderful night ahead.